everyone. Today we are going to start chapter 5, that is acids, bases and salts. This is for class 7th. Right. Now in this chapter we are going to understand what are acids, what are bases and what are salts. So let us start the chapter. Now in our daily life, whatever we eat, it has some taste, like we feel either it is salty or sweet or sour or bitter, right? Now if we consider only the this sour substances, why some fruits or vegetables they taste sour? Because they contains acid. Like for example, the lemons, the oranges, they contain the citric acid. That's why they are sour in taste, right? Similarly, we have acetic acid which is present in vinegar, right? And we have this formic acid which is there present in the ant's bite, right? So there are several things in which acids are present. Now let us see what are these acids and bases. Now acids, basically if we go through the taste wise, then these acids taste sour, right? ये खट्टे होते हैं टेस्ट में, एंड जो भी चीज़ें खट्टी होती हैं उनको हम टेस्ट करके बता सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज कंटेनिंग एसिड, राइट? नाउ एसिड चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड. लिटमस पेपर होता है जिससे हम टेस्ट करते हैं कि जो भी चीज़ है वो एसिड है या बेस है. तो अगर हम blue litmus if we are using blue litmus paper, then this blue litmus paper will change to red. The color will change from blue to red if it is a acid, right? Then the substances that contains acid shows the acidic nature. जो भी substances हैं, अगर उनमें कोई भी acid present है, that means वो substance acidic nature show कर रहा है, right? Now examples are formic acid, HCl, etc. I have already told you, like formic acid, citric acid, all these are acids. Now let us see the base. Now base are those substances which have base, they will taste bitter, like वो कड़वे taste होंगे. Now these bases, they change red litmus paper into blue color, right? Then those substances which contains base, they show basic nature. जो भी substances जिनमें base present है वो basic nature show करेंगे, right? Example is baking soda, NaOH, etc. Now to explain these things, I will be doing one activity so that it will be clear to you. First of all, before that, let us understand what are indicators. Now indicators are the substances that are used to identify whether the substance is acidic or basic. ऐसे substances होते हैं जो हमें पता करने में help करते हैं कि जो भी substance हम check करने जा रहे हैं, जैसे अगर हम पानी पी रहे हैं तो वो acid है या base है, उसको पता करने में, identify करने में हमको help करता है. तो those are the substances which help us to identify whether the substance is acidic or basic are known as indicators. Now indicators are categorized into two categories. One is natural indicators and other is synthetic indicators. The man-made indicators, we call them as synthetic indicators. Now in natural indicators, we have some examples like litmus paper, litmus, China rose and turmeric. And in synthetic, we have phenolphthalein and methyl orange. Now let us see these examples. Now litmus. Litmus is the thing which we obtain from lichens, right? Lichens are the organisms, living organisms from which we obtained litmus. So basically it is of mauve color, and we used to have it in solution form as well as in strips form, paper strips form, right? They are basically available in two colors. One is blue color strips and other is red color strips. That's why we are saying here, if we are going to test acids, then we will use blue color strips, and if the blue color strips changes its color to red, that means the particular substance is containing acid. Similarly, if the substance, if we are checking from the red litmus paper, and if red litmus paper changes to blue, that means it has base in it, right? So this is the litmus, about litmus paper. Now we have seen how litmus paper, the red and blue, changes its color when we have
acid or base. Now about China rose, it is light pink in color if we obtain the extract from China rose, right? And if in acid, if we use China rose as an indicator, it will show magenta color, or you can say dark pink color, and in a base it will show green color, राइट अगर कोई सब्सटेंस है वो बेसिक है नेचर में और हम चाइना रोज को यूज करके उसे टेस्ट कर रहे हैं तो वो ग्रीन कलर शो करेगा, राइट? ग्रीन कलर शो करेगा, दैट मीन्स वो बेसिक है. मैजेंटा कलर शो करेगा, दैट मीन्स वो एसिड है. सिमिलरली टर्मरिक अगर कोई एसिड सब्सटेंस को चेक कर रहे हैं टर्मरिक यूज करके तो उसका कलर चेंज नहीं होगा. टर्मरिक ऑलरेडी येलो कलर की होती है, सो येलो कलर ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. लेकिन अगर हम किसी बेस के साथ चेक कर रहे हैं तो उसका कलर रेड में, येलो से रेड में चेंज हो जाएगा. नाउ कमिंग ओवर टू द सिंथेटिक इंडिकेटर्स, फर्स्ट इज फिनोफ्थलीन. फिनोफ्थलीन अगर हम एसिड में चेक कर रहे हैं तो कलरलेस आएगा, ठीक है, कोई कलर नहीं होगा उस लिक्विड का, उस सब्सटेंस का. अगर फिनोफ्थलीन हम बेस में चेक कर रहे हैं देन इट विल शो अ लाइट पिंक कलर. ओके, then methyl orange is another synthetic indicator. It will show a red color in acidic substance and a yellow color in base, right, in basic substance. So let us see now the activity where I will be showing you the reaction of turmeric as an indicator, and we will see how litmus paper works in the substances. How does it show us the substance is acidic or basic? Okay, so let us now we are having the setup. Here I am having this vinegar. It is acidic in nature, just we have learnt, right? Then I am having some baking soda. Here I am having turmeric, that is the natural indicator. Then we have these two types of litmus paper. You can say litmus red paper and litmus blue paper. So you can see these strips, these are of blue color, this is blue litmus paper, and here this is the red litmus paper, these are red in color, right? And here in this I am having the solution of baking powder, right? And in this I am having this vinegar, and here some water. Now let us see, first we are going to test for the turmeric acid, turmeric indicator we are using. So let us, I am just making a, okay, now you can see this is a patch of turmeric. This we are using as an indicator. Now we are going to put some, now this is baking powder solution. So you can see I have dropped some baking powder solution. You can use some more so that it can be easily visible to you all. Now you can see the color of turmeric has changed from yellow to red, right? Now you can see, you can differentiate, this is yellow in color and this has changed to red, right? So now we have learned that turmeric paste, it changes to red when we use when the solution is basic. That means the solution which we have in this particular glass, or this is the baking soda, it is basic in nature, that's why it has changed color to red, right? Now if we use turmeric again and we use acid solution over it, now I am pouring some acid, that is the vinegar, over here. Now you can see the color is not changing. The color of acid, this turmeric indicator, is not changing when we have added the acidic solution, that is vinegar. So this turmeric indicator clearly shows when it is used in basic solution, it changes to red color. When it is used with acidic solution, the color does not change, it remains yellow. Okay, तो ये येलो ही रहता है. अब हम देखेंगे लिटमस पेपर स्ट्रिप्स कैसे फंक्शन करती हैं. Now here I am using red litmus paper and in this I am dipping it. So I have dipped in this and you can now see
हमने रेड लिटमस पेपर यूज़ किया था और जब हमने इस सोल्यूशन में डिप किया तो इसका कलर ब्लू चेंज हो गया। ब्लू चेंज हो गया तो जैसे हमने पढ़ा था कि रेड लिटमस पेपर जिसमें ब्लू चेंज हो जाएगा अगर, तो वो सोल्यूशन बेसिक होगा। सो दिस सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, दैट्स व्हाई द रेड लिटमस पेपर हैज़ चेंज टू ब्लू। ये बेसिक नेचर, ये इसमें बेस मिला हुआ है, इस सोल्यूशन का नेचर बेसिक है, इसीलिए रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू में चेंज हो गया है। अब अगर मैं इसी पेपर को, आप देख सकते हैं ये रेड पोर्शन है, इसको मैं दूसरे सोल्यूशन में डिप कर रही हूँ और हम देखते हैं कि इसका कलर कैसा चेंज होता है या नहीं होता है। ओके, नाउ अब आप देख सकते हैं ये गीला हुआ है बट यहाँ का कलर जो है वो चेंज नहीं हुआ है, यानी कि रेड लिटमस रेड ही रहा है। ये जो सोल्यूशन है ये एसिडिक है, ये हमें पता था पहले से क्योंकि हमने इसमें विनेगर डाला था। दैट मीन्स अगर एसिडिक सोल्यूशन है तो रेड लिटमस पेपर का कलर जो है वो चेंज नहीं होता है, राइट। अगर हम इस रेड लिटमस पेपर को न्यूट्रल सोल्यूशन, पानी जो है वो न्यूट्रल होता है, ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, तो अगर रेड कलर स्ट्रिप को हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, पानी में डिप करते हैं, तब भी इसका कलर चेंज नहीं होता है, राइट। सो रेड लिटमस पेपर ओनली चेंजेस इट्स कलर टू ब्लू इन बेसिक सोल्यूशन, ठीक है। रेड लिटमस पेपर का कलर सिर्फ बेसिक सोल्यूशन में ही चेंज होता है। नाउ लेट अस सी हाउ दिस ब्लू लिटमस पेपर चेंजेस। ब्लू लिटमस पेपर अब हम बेसिक सोल्यूशन में सबसे पहले डिप करेंगे। नाउ यू कैन सी, जब हमने ब्लू लिटमस पेपर बेसिक सोल्यूशन में डिप किया तो इसका कलर चेंज नहीं हुआ है। दैट मीन्स ब्लू लिटमस पेपर डू नॉट चेंज इट्स कलर इन बेसिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन में चेंज नहीं करता है। अब हम इसे एसिडिक में डिप करेंगे। ओके, इस सोल्यूशन में इस ब्लू लिटमस पेपर ने अपना कलर चेंज कर लिया है, ये रेड में चेंज हो गया है, राइट। यानी कि ये सोल्यूशन जो है ये एसिडिक इन नेचर है, ये एसिड इसमें प्रेजेंट है। दैट इज व्हाई ब्लू लिटमस पेपर हैज चेंज इट्स कलर टू रेड, राइट। अब अगर हम यही लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर न्यूट्रल सोल्यूशन यानी कि पानी में डिप करें तो आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज नहीं हुआ है। दैट मीन्स ब्लू लिटमस पेपर बेसिक सोल्यूशन में और वाटर में अपना कलर चेंज नहीं करता है, सिर्फ एसिड में अपना कलर चेंज करता है और कलर चेंज होके रेड हो जाता है। और रेड लिटमस पेपर बेसिक सोल्यूशन में अपना कलर चेंज करता है, ब्लू में चेंज हो जाता है, और एसिडिक में और वाटर में यानी कि न्यूट्रल में अपना कलर चेंज नहीं करता है। सो आई होप इस एक्टिविटी से आपको ये समझ में आ गया होगा कि लिटमस पेपर कैसे चेंज होता है, किस सोल्यूशन में कलर चेंज करता है कौन सा लिटमस पेपर, और इंडिकेटर जो टर्मरिक इंडिकेटर है वो कैसे फंक्शन करता है। ओके, सो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में, न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। तो वो पढ़ाने से पहले मैं आपको यही दिखा देती हूँ, क्योंकि हमारे पास ये बेसिक सोल्यूशन है और ये एसिडिक सोल्यूशन है। जब बेसिक सोल्यूशन और एसिडिक सोल्यूशन हम मिलाते हैं, क्योंकि ये पूरा एसिडिक है और ये पूरा बेसिक है और हमें चाहिए न्यूट्रल, ठीक है। तो अगर हम इसको मिक्स कर दें, यू कैन सी जो रिएक्शन हुई, जो यहाँ पे आपने बबल्स देखे, जो एकदम सिजलिंग सी साउंड देखी, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई है, जिसकी वजह से ये अब ये जो सोल्यूशन हमें मिला है ये ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, ये न्यूट्रल सोल्यूशन है। और इस रिएक्शन में जो बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है, वो एक सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, राइट। सो लेट अस सी नाउ व्हाट एक्चुअली न्यूट्रलाइजेशन process is. Just now I have shown you the neutralization reaction in which I have mixed the acidic solution with a basic solution, right? मैंने अभी आपके सामने विनेगर और बेकिंग सोडा को मिक्स किया था, जिसमें सिजलिंग साउंड आई थी, बबल्स आए थे, राइट, जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी। सो neutralization reaction is basically the reaction between an acid and a base, and here a salt is formed with water and heat is evolved. heat भी निकलती है, यानी कि आप उसको अगर
फील करें या आपके पास लेबोरेटरी थर्मामीटर हो तो आप चेक कर सकते हैं कि उसमें हीट निकली है, राइट। नाउ हियर यू कैन सी एसिड को जब हमने बेस में मिलाया तो हमारे पास सॉल्ट बना, वाटर बना और हीट इवॉल्व हुई। नाउ विद एन एग्जांपल लेट अस सी, HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एसिड है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस है, ये दोनों जब मिक्स किए जाते हैं तो NaCl सोडियम क्लोराइड बनता है प्लस H2O वाटर है और हीट इवॉल्व हो रही है। सो दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाउ लेट अस सी वेयर दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन कहाँ कहाँ यूज होता है। सो फर्स्ट इज अबाउट इनडाइजेशन। नाउ यू नो जब खाना हमारे पेट में जाता है तो खाने को पचाने के लिए हमारा जो पेट होता है उसमें HCl रिलीज होती है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होती है। सो एसिड है। कभी कभी जब हम ज़्यादा मसालेदार खाना खा लेते हैं या बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो क्या होता है HCl ज़्यादा सिक्रीट होता है। ज़्यादा सिक्रीट होने की वजह से हमें इनडाइजेशन हो जाता है या एसिडिटी हो जाती है, राइट। तो उस टाइम उस HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम डाइजीन लेते हैं, राइट। डाइजीन में बेसिकली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, राइट। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है या इसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, जो कि एक बेस है। तो पेट पे हमारे ऑलरेडी HCl है और हमने बेस जो है बेसिक यानी कि डाइजीन जो है वो हमने पी लिया है, तो वो स्टमक में जाके रिएक्शन करेगा जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी एंड देन वी विल गेट रिलीफ। नेक्स्ट इज एंट बाइट। कभी कभी जो आपने देखा होगा जो रेड कलर की चींटियां होती हैं वो काट लेती हैं, तो हमें उस जगह पर इचीनेस होती है। क्यों? क्योंकि जो एंट बाइट होती है, जब चींटी काटती है तो वो काटने के साथ में हमारी स्किन में फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है, राइट। फॉर्मिक एसिड होने की वजह से वो हमें जलन करता है, थोड़ी सी खुजली सी यानी कि ईचिंग होती है, राइट। और हम अगर उस पर कैलामाइन सोल्यूशन अप्लाई करते हैं, कैलामाइन सोल्यूशन जो कि बेसिक होता है नेचर में, वो लगा लेते हैं तो हमें वो इचीनेस नहीं होती है, क्योंकि रिएक्शन जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है कैलामाइन सोल्यूशन लगाने से। नेक्स्ट इज सॉइल ट्रीटमेंट। कभी कभी क्या होता है, सॉइल जो है वो फर्टिलाइजर्स यूज करने की वजह से या तो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है या बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाती है। तो अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गई है देन वी विल यूज़ क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम, ठीक है। क्विक लाइम को हम कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं और स्लेक्ड लाइम जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, वो यूज़ करके हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं ताकि सॉइल जो है वो नॉर्मल आ जाए और उस पर क्रॉप्स ग्रो कर पाएँ ईजिली। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाती है देन वी विल यूज़ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि कंपोस्ट, राइट। जो कंपोस्ट होता है वो हम डालते हैं सॉइल में, मिक्स करते हैं, जिससे कि रिएक्शन जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, सॉइल न्यूट्रलाइज हो जाती है और फिर उस पर क्रॉप्स इजीली ग्रो करते हैं। लास्ट एग्जाम्पल है वी आर गोइंग टू सी इज अबाउट द फैक्ट्री वेस्ट। जितनी भी फैक्ट्रीज होती हैं उनमें जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, वेस्ट वाटर निकलता है, उसमें बेसिकली सबसे ज़्यादा एसिड्स होते हैं, राइट। अगर ये ऐसे ही वेस्ट रिवर्स में या पॉन्ड्स में ड्रेनेज के थ्रू डाल दिया जाएगा, डिस्पोज कर दिया जाएगा, तो जो भी एक्वेटिक लाइफ है पॉन्ड की या रिवर की वो डैमेज हो जाएगी, वो ख़त्म होने लगेंगे। जैसे फिशेस हैं तो वो मरना शुरू हो जाएंगी, जो बाकी के ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स रह रहे हैं वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए फैक्ट्री वेस्ट को पहले ट्रीट किया जाता है, उसे न्यूट्रलाइज किया जाता है। सो it is neutralized because it contains most of the acids, so it is neutralized by using basic substances, right. So these are some examples in our daily life where we use this neutralization reaction. By here I have completed this chapter. I hope you have understood it well. Thank you.